morning kids, welcome to the lesson of SP, that is documents related to formation of company। चलिए आज डिस्कस करते हैं हम लोग कि डॉक्यूमेंट्स ऑफ रिलेटेड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के किसी कंपनी को फॉर्म करने के लिए कितने डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं या क्या नेसेसरी और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसमें हमने बहुत कुछ पढ़ चुका था। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट पॉइंट विच इज एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स। ओके, आइए आज हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स एग्जैक्टली क्या होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स एग्जैक्टली क्या होता है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 55 ओवर देयर। Entrenched articles are those articles, yeah, we can say provisions, which cannot be altered by passing only a special resolution, but a more elaborate procedures as prescribed by the Act must be followed. As I told you guys that articles means what? Yeah, entrenchment of articles means what, guys? Some provisions. Means whatever rules and regulations are there in that particular company, you have to follow that particular rules and regulations. Means it's a compulsion. But whenever you want to change, yeah, we can say whenever you want to alter the same, we can say rules and regulations of that particular company, if you want to change, yeah, if you want to alter that particular rules and regulations of particular company in the same enrichment of articles, you are unable to change, yeah, we can say you are unable to alter the same, we can say by passing a special resolution. As I told you that name clause, object clause, n number of clauses are there. Yeah, whenever you want to change name clause, you just have to, we can say, you just have to go through with, yeah, we can say you just have to pass a special resolution, and after passing that special resolutions, you'll be able to alter, yeah, you'll be able to change the name clause, the object clause, the capital clause and so on, yeah, we can say blah blah clauses. But अगर हम लोग बात करते हैं, if we are talking about entrenchment of articles, तो entrenchment of articles, it's a provision, yeah, we can say it's a rule, it's a guideline, it's a regulation which you are unable to alter, yeah, you are unable to change by passing a special resolutions. Means उसके लिए आपको कुछ और processes करने पड़ेंगे, further processings, उसके बाद में you'll be able to change or alter the same. Entrenchment of articles क्या होता है बच्चों, कि कंपनी के कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके बदल नहीं सकते हो या उनमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। उसी प्रकार के एक प्रोविजन को बोलिए या आर्टिकल को बोलिए, हम बोलते हैं एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स। नाउ एज गिवन इन योर टेक्स्ट, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। चलिए, एक जो स्पेशल रेजोल्यूशन की हम बात करते हैं जिससे नेम क्लॉज, कैपिटल क्लॉज चेंज हो जाते थे, वो रेजोल्यूशन पास करने के बाद भी इस टाइप के आर्टिकल्स को हम बदल नहीं सकते, चेंज नहीं करते, इसे ही हम बोल देंगे एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स। आइए देखते हैं फिर एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर चीज कैसे चेंज होगी। अब फॉर एग्जाम्पल, इफ 10 members are there in that particular company, as I told you, by passing a special resolutions, you are unable to change, या you are unable to alter the same. आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उस चीज को चेंज नहीं कर सकते हो। फिर कैसे कर सकते हो, चलिए अज्यूम करते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी में 10 मेंबर्स है, तो 10 में से इफ 9 members are agreeing on that, means 9 members wants to change that particular provision, that particular article, yeah, that particular rules of that particular company. If they want to change, out of 10, 9 members should agree. If they are not agree, तो जो वो पर्टिकुलर आर्टिकल है वो एज इट इज रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार की चेंजेस नहीं हो सकती है। और अगर कंपनी में काम करने वाले 10 लोग हैं, 10 में से 9 लोग बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज को हमने बदलना है, चेंज करना है, तो बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए इन सभी लोगों की सहमति से या इन सभी लोगों की मर्जी से हम उस रूल को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। ठीक है, आइए अगला चेकआउट करते हैं। नाउ ये तो हो गया हमारा एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स।
ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. Now let's have a look to it, guys. Ki exactly what is alteration of articles of association? When a company wants to change the articles of association of that particular company, this is known as change in that particular agreement या change in that particular articles of association. अगर कंपनी जो भी हमारी articles of association, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं AOA, अगर कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को बदलना चाहती है या उसमें कुछ चेंजेस करना चाहती है, कुछ डिडक्शंस हो सकते हैं, कुछ चीजें ऐड हो सकती है, अगर कंपनी वो चीजें करना चाहे उसे हम बोल देंगे ऑल्ट्रेशन. ऑल्ट्रेशन को हम दूसरी लैंग्वेज में और बोल सकते हैं कि चेंजेस, किसी भी प्रकार के चेंजेस, बदलाव, या उसमें कुछ सुधारना करनी है या कुछ चीजें ज्यादा हो गई है उन्हें कम करना है, कोई भी हो, उसे हम बोल देंगे ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. आइए देखते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एग्जैक्टली क्या होता है. नाउ द कंपनीज एक्ट स्टेट्स दैट द सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड कंडीशंस contained in the memorandum of association, a company can alter its articles of association by passing a special resolution in general meeting of the company. By passing a special resolution in general meeting. Now guys, whenever company wants to change the articles of association of that particular company, जब भी कंपनी को कंपनी के किसी भी प्रकार के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बदलने होते हैं या उनमें किसी प्रकार के चेंजेस करने होते हैं, तब कंपनी क्या करती है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है, एक पर्टिकुलर वी कैन से रेजोल्यूशन पास करती है और उसे जनरल मीटिंग में डिस्कस किया जाता है. अब जनरल मीटिंग क्या रहेगी, जनरल मीटिंग एक ऐसी मीटिंग रहेगी जिसमें सारे सुपीरियर्स, सारे मिडिल और सारे सबऑर्डिनेट्स एक साथ आके उस मीटिंग में बैठेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एज आई टोल्ड यू दैट दिस इज अ कंपनी. ओके, नाउ दिस इज अ कंपनी. नाउ इन द सेम कंपनी 3 टाइप्स ऑफ पीपल्स आर वर्किंग टुगेदर, या 3 प्रकार के लोग इसमें काम कर रहे होते हैं, जैसे टॉप लेवल, मिडिल एंड लो. चलिए, इस पर्टिकुलर कंपनी में 3 टाइप के लोग काम कर रहे हैं. टॉप लेवल में आ जाएंगे आपके मैनेजर, डायरेक्टर्स, सुपरवाइजर्स, या और मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, एमडीज एंड ऑल. अगर मैं मिडिल की बात करती हूँ तो यहाँ पे आपके सारे असिस्टेंट हेड्स आ जाते हैं, जैसे कि सुपरवाइजर्स हैं, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज है, वी कैन से कोई छोटे मोटे प्रकार का मैनेजर होगा या एक पर्टिकुलर हेड हो जाएगा उस पर्टिकुलर टीम का. नेक्स्ट, अगर मैं लो वाले की बात करती हूँ, यहाँ पे आ जाता है बहुत ही लो वाला स्टाफ, जैसे कि वर्कर्स, एम्प्लॉयज, लेबर्स या स्वीपर्स, मॉपर्स, क्लीनर्स, एक्सवाइजर. नाउ whenever company wants to change articles of association of that particular company, जब कभी कंपनी इस प्रकार के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को बदलना चाहती है, तब कंपनी ने क्या करना है, कंपनी के अंदर ये जो 3 लोग इन्वॉल्व है, कंपनी एक रेजोल्यूशन ठीक है पास कर देगी, पर कंपनी को ये जो भी चेंजेस करने हैं, जैसे कि ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वो कंपनी ने क्या करने हैं, एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो रहेगा जनरल मीटिंग में इन सभी के साथ डिस्कस करना होगा, टॉप, मिडिल एंड लो. व्हाई देयर इज अ नीड टू डिस्कस द सेम रेजोल्यूशन या द सेम चेंजेस इन फ्रंट ऑफ, या वी कैन से इन जनरल मीटिंग इन फ्रंट ऑफ top, middle and low? That the reason of it is कि they should know या they should aware about it कि कंपनी पहले कैसी थी, अब क्या चेंजेस हो गए, उसमें कितनी चेंजेस हो चुके हैं, तब्दीली हो चुकी है, या एग्जैक्टली अब किस वे से वो पर्टिकुलर चीज चलेगी. इसीलिए स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में ही पास किया जाता है कि हर किसी को एट अ टाइम वो चीजें पता चल जाए. अलग अलग मुझे टॉप लेवल की अलग मीटिंग, मिडिल की, लो की, डिफरेंट मीटिंग्स में मुझे उन्हें ये चीजें नहीं बतानी पड़े, या इतना मेरे पास में टाइम नहीं होता है, या मैसेजेस कन्वे करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है. दैट्स व्हाई कंपनी इन सभी को इकट्ठे बुलाती है, एक साथ में आने के बाद में जनरल मीटिंग में ये सारी चीजें डिस्कस हो जाती है. इसे हम बोलेंगे ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. चलिए अगला चेकआउट करते हैं.
चलिए, नाउ द कंपनी कैन बी या वी कैन से द कंपनी कैन ऑल्टर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इन फॉलोइंग वेज। कंपनी उसके आर्टिकल्स में चेंजेस कर सकती है। बहुत सारे वेज है उसके, या बहुत सारे उसके प्रकार है। आइए कुछ प्रकार हमारी टेक्स्ट बुक में दिया है, हम उन्हें देखते हैं। जैसे कि वेज ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ articles of association. Here I am using short form. A stands for article, O stands for of, and again A stands for association. Articles of association में किस किस प्रकार से आप चेंजेस कर सकते हो वो सब मैंने यहाँ लिखे हैं। आइए एक एक करके आप हम उन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट, बाय एडॉप्शन ऑफ न्यू सेट ऑफ आर्टिकल्स। बाय एडॉप्शन ऑफ न्यू सेट ऑफ आर्टिकल्स। चलिए, हमें एओए में कुछ चीजें चेंज करनी है, बदलनी है, या उसके अंदर चेंजेस लेकर आने हैं, यह हम कर सकते हैं। पर कब? जब हम अडॉप्ट करना मतलब कोई नई टेक्निक बोलिए या कोई अलग सी चीज का नया सेट ऑफ आर्टिकल्स जब हमें मिल जाता है या हम उसे समझ जाते हैं। पहले हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑलरेडी बना है, अब उसी में हमने कुछ चेंजेस करने हैं। अब वो किस प्रकार के चेंजेस करने हैं ये हमें कब पता चलेगा? जब हमारे पास में आर्टिकल्स का, रूल्स का, या जैसी भी कंपनी हैंडल करनी है उसका एक नया बंच, एक नया सेट आएगा, तब हम लोग हमारे पुराने वाले को चेंज कर सकते हैं। आइए सेकेंड वाला चेकआउट करते हैं। नाउ व्हाट इज द सेकेंड वन? बाय डिलीशन। बाय डिलीशन ऑफ आर्टिकल। ना बाय डिलीशन ऑफ आर्टिकल के अंदर क्या आ जाएगा कि पहले फॉर एग्जाम्पल 10 rules are there in particular company, 10 rules are there. Now company decided to deduct 2 rules from it. Now out of it hardly 8 articles we can say company will follow in further period या next years में। कंपनी ने पहले 10 रूल बनाए थे, कोई भी XYZ, अब कंपनी चाहती है 2 रूल्स को वो माइनस कर दे, कट कर दे, सिर्फ 8 रूल कंपनी फॉलो करेगी। उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोल देंगे बाय डिलीशन ऑफ एन आर्टिकल। Whenever company is reducing or deleting that particular article जो हम लोग पहले से follow कर रहे हैं। Move on toward the third one guys, that is by adding or insertion of new article। चलिए अगला देखते हैं। The third one is by adding or insertion of new article। कंपनी जब चाहे नए आर्टिकल्स को ऐड कर सकती है, जब चाहे पुराने आर्टिकल्स या जो भी आर्टिकल्स उसे नहीं पसंद है उन्हें ऐड कर सकती है, नए इंसर्ट करती है, जो नहीं चाहिए उन्हें रिमूव कर सकती है। नेक्स्ट, मूव ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट वन गाइस, व्हिच इज योर फोर्थ वन, बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन आर्टिकल। बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन आर्टिकल। सब्स्टिट्यूट क्या होता है बच्चों? ऑप्शन। सब्स्टिट्यूट की अगर मैं बात करती हूँ तो वो हो जाता है एक ऑप्शन। जैसे कि वॉट एवर रूल्स या वी कैन से वॉट एवर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वी वर यूजिंग इन प्रीवियस वी कैन से पार्ट्स। पहले हम लोग जो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यूज कर रहे थे वो थोड़े से हेक्टिक थे, पैथेटिक थे या लेंदी थे। अब हमें उसके कुछ इजी वेज पता चल गए हैं जिन्हें हम बोल देंगे उसके अच्छे ऑप्शन बोल सकते हो आप, या आप उसे सब्स्टिट्यूट्स बोल सकते हो। उसका पर्याय आपने ढूंढ लिया है, इसीलिए आप उन चीजों में चेंजेस कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बाय अमेंडमेंट ऑफ एन आर्टिकल। बाय अमेंडमेंट ऑफ एन आर्टिकल, यस। And now the last point of your session is by amendment of an article, by passing, as I told you, कि whatever rules and regulations the company is following, whenever company wants to change that, company is supposed to pass a special resolution in general meeting। उसी में अगला last point आ जाता है हमारा कि by amendment of an article, whenever company wants to change that particular rules and regulations या we can say articles of association, उस टाइम पे कंपनी को जो भी अमेंडमेंट रहेगा आर्टिकल वाला उसे प्रॉपर वे से फॉलो करना होगा। और जो भी चीजें हमारी वो जनरल फोरम में
या जनरल मीटिंग में डिस्कस कर लो और आपने जितने भी चेंजेस उसमें करने हैं या करवाने हैं आप वो इजीली कर सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, वेज ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं कि कंपनी कैसे मूव करेगी, कैसे चलेगी, कैसे ऑपरेट होगी, ये सारा सब कुछ हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। अब बहुत मर्तबा ऐसे होता है, जैसे हमने पढ़ा है ऑलरेडी, कैपिटल क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, नेम क्लॉज, या उसमें और बहुत सारे क्लॉजेस हमने देखे थे। इन सारे क्लॉजेस के अंदर क्या होता है कि कंपनी कोई एक पर्टिकुलर टारगेट डिसाइड कर लेती है। अब मे बी कोई रीजंस की वजह से कंपनी को वो चीजें बदलनी पड़ती है, या रूल्स किसी के लिए हेक्टिक हो रहे, या टाइमिंग्स, या जो भी चीजें हमने ऑलरेडी बनाई थी उन चीजों में हमें आप चेंजेस करने की जरूरत है। तो अगर कंपनी चाहे तो चेंजेस करना चाहे तो वो कर सकती है, पर कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, उसी के साथ में उस रेजोल्यूशन को जनरल मीटिंग में डिस्कस करना होगा, क्योंकि टॉप, मिडल और लो 3 प्रकार की लेवल्स या वी कैन से मैनेजमेंट एक कंपनी में काम कर रही होती है। एट अ टाइम तीनों को उस चीज की जानकारी होना जरूरी है। तो यही कुछ थे मेरे वेज ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ AOA। दैट्स इट फॉर टुडे। अगला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू सो मच।